अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, स्पोर्ट्स गाला 2023 के आज जो है अवार्ड सेरेमनी रखी गई है। जिस टीम ने विन किया है उन्हें यहाँ पे स्टेज पर बुलाकर जो है एप्रिसिएशन अवार्ड दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ सोनम मुर्शिद का ये स्पोर्ट्स गाला बहुत सक्सेसफुली रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली उन्होंने इतना प्ले किया और एक्टिवली जो है उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से खेला और ये भी साबित किया कि ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी वो सबसे आगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर चीफ गेस्ट आएंगे जो कि अपनी स्पीच के ज़रिए स्टूडेंट की हौसला अफजाई करेंगे और स्टूडेंट्स में एप्रिसिएशन अवार्ड, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस तरह से बच्चे यहाँ पे खुश होंगे, हम उनसे भी जान सकेंगे कि उन्हें जीत कर कितना अच्छा लगा और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा। In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that we all are gathered here for closing ceremony of Sports Gala Phase 5 2023. And I believe and everybody believes that this was the biggest and the largest sports gala in the history of Murshid. Clap for that. In the term of activity, Murshid Hospital and Murshid School of Nursing, under the supervision of their leader, it is going great and performing well, and day by day we are improving and we are succeeding. So clap for the Murshid School of Nursing and Murshid Hospital. So as you know that we are here for closing ceremony, so without wasting our time, I would like to start our day, our event with the name of Almighty Allah, who is our creator and our Lord. So I would request Mr. Suhail, please come on the stage for recitation some holy verses of Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उस पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम. Now for recitation of Naat, I would request Miss Rafia, the student of CMW, please come on the stage, who come here and brighten our heart with the Naat recitation. ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता. मोहब्बत कम निवाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों
वो मन मेला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मेला नहीं होता। मेरी आका की उल्फत तो बदन को जगमगाती है। कभी अहले मोहम्मद का बदन मेला नहीं होता। कभी अहले मोहम्मद का बदन मेला नहीं होता। ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता। Now, this is the time to raise the spirit of enthusiasm and sign of spirit and sign of honor and a sign of unity. That is one thing, that is our national anthem. So I would request everyone to please stand up. As I earlier said that this was the biggest and the largest in the history of Murshid Hospital and Murshid School of Nursing, the largest event of the sport which happened in the presence of you all. So I would say that, as you know, after Corona, all the activity was stopped. As once we started since last year, we have been doing different activities since last year, back to back, and every day we are improving and we are making it more larger. The best thing in this sport gala, that once it started, in the opening ceremony, the same enthusiasm, the same spirit I found you today in the heart, in the enthusiasm of all the students. So clap for all the students. And students shows their big heart for their against team. They appreciated all the team member and all the against member as well, whether they win, whether they lose.
So I would say that it was not easy task for the Murshid Hospital and Murshid team, that for the selection of the student for the particular games. As you know that there were 4 different games we played. Today we have a trophy for them, for the winner and runner-up as well. That selection, first we did selection, then we divided all the member into the team, 4 different team, red, blue, green and yellow, by the color wise, and then we decide matches, the schedule of matches, where, what and how it will be played. And then the best thing I would say that the whole program was in well disciplined and no student got injury, whether it was full of enthusiasm, full of spirit. But I really appreciate you played all the game and you respect other team as well. So you deserve a great appreciation by the management and by the coaches of as well. And the most of the game was very tough and it was very close competition. The beauty of this sports gala is that no team is that which is left to win. The red team, which is the leading position, and it won 3 titles. And green team won 2 titles. And blue also won 2 titles. Yellow team qualified for 2 times in the final, but they won one time as well. So every team is the winner. Every team is the winner. Actually, nothing is impossible. Nothing is possible without leaders. So our leader, I especially thank to Dr. Kashif Malik, who is the Dr. Kashif Mahmood, who is the CEO of Murshid Hospital. Clap for him. And I will request all of you. So I would request Dr. Gilani to please share some few words, special words with our students. So please come on the stage. CEO डॉक्टर काशिफ महमूद साहब और जो मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान आज तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि मैं स्पोर्ट्स गाला का चेयरमैन रहा हूँ और इसको मुकम्मल तौर पर अपनी टीम के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है, तो सबसे पहले मैं बात कहीं और से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन हमारे 4 कलर्स टीम थी, रेड थी, ग्रीन, ब्लू और येलो। येलो वो टीम है जिसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं, 3 नंबर उनके आए, तो मैं उनसे अपनी बात शुरू करूँगा। उनके 3 नंबर इसलिए आए कि उनके जो एक मिस समिया थी, वो चूँकि बहुत बिज़ी थी और फिर उनके सर यासीन वो अपनी टीम को टाइम नहीं दे सके, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया। लेकिन बच्चे जिस बात पर हंसे हैं, अब उस बात पर मुस्कराएंगे भी। उसकी वजह ये है कि येलो टीम इस सब के बावजूद भी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी ले उड़ी। तो येलो टीम ने क्योंकि मेन ट्रॉफ़ी वो ले गए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उनके टीचर अपनी मसरूफ़ियात की वजह से मसरूफ़ियात उनकी ज़्यादा ना होती और वो बिज़ी ना होते और वो फुल टाइम अवेलेबल होते, तो फिर रेड टीम और बाकी टीमों के लिए वो बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। इस स्पोर्ट्स गाला की दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कामयाबी के लिए मेरे नज़दीक 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, आपको अपना काम आना चाहिए और दूसरा नीयत साफ़ होनी चाहिए।
ये दोनों तो हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वो सबको अपना अपना काम भी आता था और सबकी नीयतें भी साफ़ थीं। तो जब नीयत साफ़ हो तो ये इतनी सिंपल सी बात है कि ट्रक ड्राइवर को भी इसका पता है, वो भी ट्रक के पीछे लिख देता है कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। तो फिर आपका अपना टारगेट जो है वो हर हाल में पूरा हो जाता है। तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, एक क्रेडिट मैं प्रिंसिपल साहब को भी देना चाहता हूँ कि जब ये गाला शुरू हुआ तो मैंने उनको शुरू में कुछ मशवरे दिए कि मैंने कहा कि क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का बहुत एक्सपीरियंस रहा, इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे मैं ख़ुद भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का यानी बहुत अच्छे लेवल का प्लेयर रहा हूँ। ये और बात है कि जब मैंने फ़र्स्ट डे यहाँ पे बच्चों के साथ टेबल टेनिस खेला तो वो कहते अच्छा सर आपको भी खेलना आता है। अच्छा बैडमिंटन फ़र्स्ट डे खेला तो मेरे बारे में शायद ऐसे लगता है कि जैसे शायद मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा सर आपको बैडमिंटन भी खेलना आता है। तो क्रेडिट प्रिंसिपल साहब को ये ज़रूर जाता है कि मैंने उनको मशवरा दिया। तो मैंने कहा कि अगर कुछ चीज़ें मेरे आप हवाले कर दें तो ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। पहले भी बहुत अच्छे हुए हैं तो हर दफ़ा पहले से बेहतर होना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल साहब ने खैर ये बात मान ली। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि बात मानने की वजह से हम और बेहतर तरीके से अच्छा करने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट के क्रेडिट की तरफ भी हम जाएंगे। मोस्टली हर जगह लोग डिमांडेड होते हैं, डिमांड तो करते हैं लेकिन रिज़ल्ट देने की कोशिश नहीं करते। मैनेजमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट हमें रिज़ल्ट दें। तो जब रिज़ल्ट देते हैं तो ये दरअसल मैनेजमेंट की हौसला अफजाई होती है। उससे क्या होता है कि अगली दफ़ा मैनेजमेंट फिर और अच्छे तरीके से फिर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये क्रेडिट जाता है कि इस पूरा गाला के अंदर हमने उनके वॉच किया, सिर्फ स्पोर्ट्स वॉच नहीं की, उनका एथिक्स वॉच किया, उनका डिसिप्लिन वॉच किया, उनका एटीट्यूड वॉच किया, उनका बिहेवियर वॉच किया, उनका रवैया कैसा था। ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। किसी जगह पर भी ऐसे नहीं लगा कि हम कोई ऐसे अनपढ़ लोग या ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनको मैनर्स नहीं है। बहुत अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, गेम्स में भी थी, खेलों एटीट्यूड में भी थी, डिसिप्लिन यानी आपको हमें कोई ऐसा लूज़ पॉइंट नहीं मिला जिससे हमें मसला हो। छोटी छोटी दरमियान में जो बातें हो रही थी वो गेम्स में ना हो तो फिर गेम्स का भी मज़ा नहीं है। तो वो उन बातों की वजह से आखिर में ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का रवैया था कि अंपायर्स की बात को, मैनेजमेंट को, अपनी फैकल्टी को, अपने ग्रुप लीडर्स को, उनकी बातों को एक्सेप्ट करते थे और फिर वहीं पर डिसीजन फाइनल हो जाता था। ये सबसे अच्छा एटीट्यूड था और इसी से हमारी हौसला अफजाई हुई और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सीईओ साहब स्पोर्ट्स गाला इनके आने से हुआ। पहले कभी कभी कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो जाता था, कंटिन्यू आज तक नहीं हुआ। तो सीईओ साहब का बहुत बड़ा राइट बनता है, हक बनता है कि उनके लिए ठीक है। और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर वो हमारी और ज़्यादा अच्छे तरीके से सरपरस्ती करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे और लड़कों को ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। Our beloved CEO Dr. Kashif Mahmood, please come on the stage and share valuable words. नो डाउट आज तो आप सबकी खुशी का डे, तो अब बेज़्यादा तो टाइम लूँगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। अलबत्ता मैं कुछ चाहूँगा कि अनाउंसमेंट्स कर लूँ जो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं रोक कर रखता हूँ और इम्पॉर्टेंट डे ढूंढता हूँ मैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम इंशाल्लाह ताला एक बहरी ऑडिटोरियम में दोबारा एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हम जॉब फेयर भी रखेंगे। जॉब फेयर तो जो आप माशाल्लाह पास आउट हो रहे हैं उनके लिए इट विल बी अपॉर्चुनिटीज़। उस दिन हम प्लान्स कर रहे होंगे, कुछ और इदारे जो आएंगे हमारे साथ इंशाल्लाह ताला, तो दे विल बी हैविंग योर इंटरव्यूज एज वेल इंशाल्लाह ताला। एंड डेट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, क्या है आमिर? 6 मई। नहीं, द अदर वन
अरे जॉब डेयर उसके साथ है या कवाली नाइट के साथ है? उसी के साथ है। अच्छा ठीक है, ओके। सो देयर आर 2 इवेंट्स एक्चुअली, वन इज कवाली नाइट, उसमें भी खैर आप लोगों का उसमें रोल होगा। द अदर इज इंटरनेशनल नर्सेज डे इंशाल्लाह ताला, वो 6 मई को है। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे विद इंटरनेशनल गेस्ट एंड विद जॉब फेयर इंशाल्लाह ताला, तो उसकी एक तो आप प्रिपरेशंस भी करनी है। दूसरी इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनुस खान साहब नो डाउट आपके भी खैर फेवरेट हैं इंशाल्लाह ताला, हमने उनको एक इनवाइट किया है, वो कुछ दिनों में आपके पास आएंगे। और मज़े की बात यह कि वो अभी भी आते रहते हैं, बट कभी आप लोगों से मुलाकात उनकी नहीं हुई होगी। एक्चुअली वो यहीं से गुजर कर कभी जाते हैं तो मस्जिद वगैरह आते हैं, तो बट उनको हमने स्पेशली इनवाइट किया फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला। तो आपके साथ आएंगे, 1-2 घंटे आपके साथ गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला वो यूनुस खान इंशाल्लाह ताला। और जो थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी हमारे पास बैठे हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आई थी हमारे पास जेएस बैंक की, और इंशाल्लाह ताला वो अनाउंस खुद भी कर लेंगे, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आप सबके इंशाल्लाह ताला अकाउंट्स भी हम बनवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और आपके सबके हमारी कोशिश है कि ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके लिए हम प्लान्स करें इंशाल्लाह ताला। सो आई पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट जो भी विनर्स हैं, जो लूजर्स भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारा होगा इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन इंशाल्लाह ताला, एंड वेन्यू विल बी UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंशाल्लाह ताला। So the Vice President of JS Bank, Muhammad Ali Jonja Saab, is with us. So I would request with him to share a few words with you. Please come here. Thank you very much, all of you. And I'm honored and very humbled to be here with all winners. And thank you very much, Kashif Saab and Tehseen Saab. You invited me. हमारा और आपका जो प्रोफेशन है, सिंस आई एम बैंकर, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो कॉमन मेरे ख्याल से कंसल्टेंट है। आप लोग मेडिकल कंसल्टेंट हैं, हम लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। तो आप लोग की जो वेल्थ होगी, हम जिसको फाइनेंस करेंगे वही आपको पे ऑफ कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो आप भी हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट, हमारे बिना अधूरे हैं, हम आपके बिना अधूरे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to all winners, big achievement for all of you। और जो लोग बात हुई थी यहाँ पे लूज़र्स की, तो मैं लूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि आई वोंट से लूज़र्स जो कि हारे हैं, दे आर स्ट्रगलर्स। और हमें एक्चुअली हमें जो एजुकेशन मिली है उसमें तो हम यही कहते थे कि दोज हू ट्राई ऑलवेज फ्लाई, दे नेवर क्राई, देयर सक्सेस नेवर टेल्स देम गुड बाय। तो ट्राई हार्डर हार्डर एंड हार्डर, वो आपका एक बड़ा रहेगा। तो आई एम हैप्पी कि इतनी फुल ऑफ एनर्जी मैं मेडिकल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि हम सेल्स में बड़ी एनर्जी होती है, बट फुल ऑफ एनर्जी यहाँ पे मेरे कॉलीग बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि सर ये तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी नज़र आ रही है। तो मैंने कहा यस, दिस इज़ स्पार्क, दिस इज़ न्यू जनरेशन, ये मिलीनियम हमारी जनरेशन है, तो इनके एक एनर्जी पावर, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो उसी के लिए फिर जब इतनी एनर्जी, इतना पावर, इनकी पावरमेंट होती है, तो डिजिटलाइजेशन का दौर है। हमने अपनी ज़िंदगी में व्हाट्सएप बड़ा यूज़ किया, स्नैपचैट, पता नहीं इंस्टाग्राम और ये और वो, 1000 चीज़ें हमारे पास। अगर आज हमें उम्र कैद दे दी जाए और एक मोबाइल दे दिया जाए, लेकिन उसके साथ वाईफाई बहुत ज़रूरी है और चार्जर भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप लोगों को मिल जाए ये चीज़ें, तो फिर उम्र कैद नहीं है, फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी फिर तो। हाँ, अगर वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाए तो फिर मे बी के वी कॉल इट एज उम्र कैद। तो जहाँ डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो वहाँ पे बहुत से इनिशिएटिव माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल ले रहा है और बहुत सी एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं।
तो मेरी डॉक्टर साहब से डिस्कशन हो रहा था, मैं इनको यही कह रहा था कि माशाल्लाह जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह आपकी टीम वर्क कर रही है, तो मे बी कि ऑप्टिकली इतना नहीं हो, बट ऊपर ज़रूर इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और बड़ा पावरफुल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। तो इसका आपको पे ऑफ बहुत जल्दी मिलेगा। आप लोग जिस तरह लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ीरो फाइनेंशियल्स के ऊपर आप जिस तरह उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सबसे बड़ा जो मसला है वो हेल्थ का है। दो चीज़ें, दो जगह बंदा अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, एक हॉस्पिटल और दूसरा कोर्ट, मजबूरी में जाता है। तो दोनों चीज़ों से बचा है, लेकिन ये भी एक ज़िंदगी के साथ है कि जहाँ हेल्थ है वहाँ फिर अल्लाह ताला ने बीमारी भी रखी, चैलेंजेस भी रखे हैं। शिफा देने वाली ज़ात भी वही है, लेकिन वो शिफा आप लोगों के हाथ से आती है, आप लोगों की मेहनत से आती है। तो बहुत डिपेंडेंसी होती है आप लोगों पे, क्योंकि आपका एक अच्छा डिसीजन पूरी फैमिली को खुश कर सकता है, एक थोड़ा सा वीक डिसीजन ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो बिल्कुल उसी मेहनत, उसी लगन, उसी के साथ आप लोग वर्क करें। जहाँ डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिर्फ बात करूं, तो डॉक्टर काशिफ साहब ने एक बहुत मैसिव इनिशिएटिव ले रहे हैं विद पार्टनरशिप ऑफ जैज़ बैंक, कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के अकाउंट्स ओपन करें और उनको हम जो ATM कार्ड्स हैं वो दें, ताकि और फ़ी का इनको एक अपना सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें, ताकि क्यूज़ में लगने से बेहतर है कि क्यू में ना लगे, अपने मोबाइल्स के थ्रू फ़ी पे करें, अपने ATMs के थ्रू फ़ी पे कर दें। क्योंकि जहाँ डिजिटलाइजेशन का दौर है, जहाँ मोबाइल आपका है, तो इस वक्त बैंक इन योर वॉलेट। तो अब जब आपके पास हर चीज़ है, तो आपको अब बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तमाम ट्रांजैक्शंस अपने चैनल्स के ऊपर कर सकेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, इनवाइटिंग मी, माय टीम इज़ हियर। वंस अगेन आई एम हम्बल्ड और आई एम थॉरली इंजॉइंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके आगे आने वाले गेम्स के अंदर और चीज़ों के अंदर। ऑल द बेस्ट। Now we request Mr. Tehsin Saab, please share a few words with the student. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर काशिफ ने, मोहम्मद जंजवा साहब ने इतने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अल्फाज जो हैं वो बात की है, लेकिन यह है कि मेरे पास वो तमाम अल्फाज तो अभी मौजूद नहीं हैं। लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि माशाल्लाह जो जोश, जज्बा और जो वलवला आप लोग पेश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। सेकंड पॉइंट इज़ दिस कि सबसे ज़्यादा मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो हारने के बाद भी इतने खुश हैं, तो वो दिस इज़ रियली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सो इट इज़ और इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन वी हैव अ यंग जनरेशन जो रियली दे आर इन देयर रियल स्पिरिट, दे आर विनर्स एंड दे विल रिमेन ऑलवेज विनर्स वेदर they lose or win. Thank you very much.